LR0 parcel. First of all, we have a recap little bit. We have already studied how the LR0 parcel will work and how it is work. We know the LR0 and SLR both are using the LR0 item. In a LR0, we have a first of all converted in the augmented grammar. After that, whatever grammar we have converted as a augmented grammar converted into the LR0 item. And whenever we have a prepare the LR0 item, after that we have prepared the parsing table. And after the preparing the parsing table, we have some stack implementation. And after the stack implementation, we will drive the parse tree. Okay. All these things we have already discussed about in previous classes. And if you have required any revision or all these things, please go through the YouTube channel, whatever I am sharing the link, so that you can easily recall and remember the concept. Now today we have introduced the SLR1 and try to understand what is the need of a SLR1. Okay, this screen is visible to all of you. Please confirm. Please confirm this screen is visible to you. Okay, these are a step whatever involved in the LR0. Some augmented grammar, canonical collection of LR0, number of production, create parsing tree, stack implementation, draw a parse tree. All this step we have already studied. But is a new one. Okay. This particular grammar is given. For example, this grammar is given, and anybody gives the question that sir derive the SLR1 parser. So how we can today we have a try to understand. In a previous example, we have a understand how is the this question asked in a two different way. For example, question asked the construct the LR0 item and produce the parse tree of a $CCDD के लिए. Otherwise, derive the LR0 parser. Okay, LR0 parser and produce the parse tree for CCDD. Okay, and the third type of questions we have studied today. Now, this particular grammar is given and ask in a question asked by us is derive the SLR1. So today we have a understand what is the need of a SLR1 and why we have a study this particular portion. Okay, this grammar is given. Every step is the same. All the steps whatever we have used the LR0 item, the similar way we have used the SLR1 parser. For example, this grammar is given. So we have this grammar is converted into augmented grammar. How we can convert the augmented grammar? Just starting symbol for the E to E dash get to D. After that, draw the canonical collection. There is only one difference in the LR0 and SLR1 after the number after production. We construct the parsing table will be the same. Okay. So in a LR0 production, we have a use this one. When any production is reduced, तो हम सब में क्या करते थे R3 लिखते थे. Whatever production is reduced, we mention that everywhere. ठीक है, सब जगह हम उसको लिख देते थे. So it creates some issue. अभी यहाँ पे single element है तो कोई दिक्कत नहीं है. But sometime due to this phenomena, we have a find the multiple entry in the single column. Okay, multiple entry मिलती है मुझे single column में. That is known as a conflict. Okay. So at that time the compiler is a conflict कि मुझे एक टाइम पे कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए because दो इंस्ट्रक्शन मुझे मिलता है. So that is a problem. That is a conflict. Okay. The conflict, whatever conflict we have studied till now, that is a shift. There are two major conflict problem associated in the parser. One is the shift reduce and reduce parser. Okay. तो देखते हैं SLR1 में क्या करते हैं. जो भी ये प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो मुझे मिल गया था पार्सिंग टेबल से कि R3 रिड्यूस हो रहा है, तो R3 रिड्यूस हो रहा है तब क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है उसका फॉलो ले लेंगे. ठीक है, और फॉलो की जो भी वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CD डॉलर है तो CD डॉलर की पोजीशन पे लिखेंगे. सिर्फ सिंगल डॉलर आ रहा है तो सिर्फ डॉलर की पोजीशन पे हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे. दैट इज टू मच सिंपल. यहाँ पे समझते हैं. Here the production number 3 is derived to B derived to, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं B का follow निकाल दिया. What is a follow? We have got the C and D, and here the what is E derived to BB. Okay, this our grammar is given. The one B, this the first this one. The first we give the C and D, and another we give the dollar. So here in the follow of a B we have find out the C, comma D and dollar. Okay, that's why
जो R3 का प्रोडक्शन है वो पूरा सेम लिखा गया है, कहाँ पे, CD और डॉलर में, ओके। एंड व्हेन वी हैव गेट द E derived to BB, that is a first initial state, ठीक है। और हमें क्या करना है, E का फॉलो निकालना है, तो E is a starting symbol, that's here we find out the only dollar, okay। so हम उसकी लोकेशन कहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ डॉलर में लिखेंगे। एंड हियर वी हैव अगेन कैलकुलेट द B derived to CD, यहाँ पे जो प्रोडक्शन वो रिड्यूस हो रहा है, B का फॉलो निकालेंगे, ऊपर भी हमने B का फॉलो निकाला है, तो दैट इज अ सिमिलर, वी हैव द C, D and dollar, so that particular table here what is the LR0 पार्सिंग टेबल, सेम ग्रामर के लिए है। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है LR0 और SLR1 में, सिर्फ जो रिड्यूसिंग एलिमेंट है, एवरीथिंग इज सेम, स्टेज सेम है, क्योंकि ग्रामर सेम है तो उनके नंबर ऑफ स्टेज सेम है। एक्शन में CD एंड डॉलर है, गोचू में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं, एवरीथिंग इज सेम, बट डिफरेंट इज हियर। वहाँ पे R3 में जब भी रिड्यूस हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, ब्लाइंडली सब पे R3 लिख रहे थे, बट यहाँ पे मैं ब्लाइंडली नहीं लिखूंगा, जो भी प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है उसका फॉलो निकालूंगा, ओके। उसका फॉलो निकालने के बाद, इसका फॉलो हमने निकाला हुआ था, तो इसका फॉलो क्या आया था, B का फॉलो था, B का फॉलो क्या था, CD एंड डॉलर, ओके। तो दैट्स वाई अब हम देखेंगे C कहाँ पे, वहाँ पे R3 लिखेंगे, D कहाँ पे, वहाँ पे R3 लिखेंगे, डॉलर है तो वहाँ पे R3 लिखेंगे। एंड सेकेंड टाइम्स व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड द फॉलो ऑफ ए E, ठीक है, E रिड्यूस हो रहा था तो फॉलो ऑफ ए E, तो E इज द स्टार्टिंग सिंबल, दैट्स वाई वी हैव फाइंड आउट द डॉलर। बाकी और कोई सिंबल नहीं, इसलिए हम दोनों को ब्लैंक करेंगे और R1 यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके। फिर से मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे 6 को, तो ये भी क्या हो रहा है, B को डिराइव कर रहा है, तो अगेन बिकॉज B इज एसोसिएटेड विद टू प्रोडक्शन, सो अगेन वी हैव कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ए B, तो फॉलो ऑफ ए B इज इक्वल टू CD डॉलर, इसलिए मैं R3 को 3 लोकेशन पे फिर से लिख रहा हूँ, तो दैट इज आवर SLR1 टेबल। इज इट क्लियर बाय एवरीवन, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट, ये कई बार शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जाता है इन योर एग्जाम। देयर आर टू टाइप ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड इन द पार्सर, द नेम इज RR। RR का क्या मतलब है, एक कोई ऐसी स्टेज जहाँ पे हम रिड्यूस करते हो, क्या हुआ, एक स्टेज में सबसे कॉर्नर पे लास्ट में 2 डॉट मिल जाए। कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि RR कॉन्फ्लिक्ट है, फिर से समझो उस पर, जो डॉट की पोजीशन थी अगर लास्ट में पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं कि वो रिड्यूस हो चुका है, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो फाइनल तक पहुंच चुका है, ठीक है। बट कोई ऐसा इंटरमीडिएट स्टेज या लास्ट का स्टेज, कोई भी स्टेज हो सकता है, अगर जिसमें 2 डॉट लास्ट में पहुंच जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रिड्यूस हो रहा है और ये भी रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द RR कॉन्फ्लिक्ट, ओके। इन्हें SR कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं, SR, S इंडिकेट फॉर द शिफ्ट, R इंडिकेट फॉर द रिड्यूस। रिड्यूस होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, जो डॉट की पोजीशन है वो लास्ट में होनी चाहिए, तो सर रिड्यूस तो हो रहा है, शिफ्टिंग भी हो रही है। यहाँ पे देखो एक ही पोजीशन पहले डॉट था, यहाँ पे ये जो ग्रामर दिया है C डिराइव टू कैपिटल B जॉर्ज A, तो डॉट पहले पोजीशन थी, A करने के बाद एक ही पोजीशन शिफ्ट हुई, बट फॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, मैं कर शिफ्टिंग रहा हूँ बट यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस दोनों हो जा रहा है, क्योंकि डॉट की पोजीशन लास्ट में पहुंच जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द शिफ्ट एंड रिड्यूस, ओके। अब ये होती है कि सर ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है, ये समझने की बात है। फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल, व्हेनेवर वी हैव कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल, तो हमने क्या बताया, यहाँ पे स्टेज लिखेंगे, उसके बाद एक्शन और गो टू। स्टेज पे क्या मेंशन होगा, व्हाट काइंड ऑफ ए टर्मिनल वी हैव यूज्ड, A, B एंड डॉलर, हियर वी मेंशन AB डॉलर। अब फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि मैं यूज कर रहा हूँ LR0 पार्सर, LR0 पार्सर में अगर रिड्यूस होगा, R1 रिड्यूस होगा, तो LR0 में क्या करता है, सब में लिख देते हैं, R1 रिड्यूस हो रहा है तो हमने क्या किया, R1 R2 लिख दिया, ठीक है। बट इसी स्टेज पे मैं क्या देख रहा हूँ कि R2 भी रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे हमें R2 कहाँ से मिल रहा है, हियर वी हैव नंबरिंग द प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे 3 ग्रामर है, कैपिटल A डिराइव टू A, कैपिटल B डिराइव टू B, कैपिटल C डिराइव टू स्मॉल a b, दिस इज द प्रोडक्शन नंबर। हमने प्रोडक्शन नंबर करते हैं ना 1 2 3, तो हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन नंबर 1 है 2 है, दोनों स्टेज नंबर 1 पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अगर मैं LR0 अप्रोच का पार्सर कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, जहां जहां पे रिड्यूस आ गया ना तो सब में रिड्यूस लिख देंगे, ओके। इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है समझते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे R1 रिड्यूस हो रहा है तो हमने R1 लिख दिया, R2 भी रिड्यूस हो रहा है तो फिर से मैंने R2 लिख दिया। बट हियर इज द कंपाइलर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि मैं A1 स्टेज पे हूँ, देखो समझे, ठीक है।
I1 स्टेज पे हूँ, A इनपुट मिल रहा है मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं R1 को रिड्यूस करूँ या R2 को रिड्यूस करूँ। यहाँ पे फिर देखो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। हम I1 फर्स्ट स्टेज पे हैं, I1 स्टेज पे और B इनपुट, so here compiler is a conclude we have performed the R1 or R2. Okay, that why is the create the issue. शिफ्ट रिड्यूस में क्या होता है समझते हैं इसको। अगर मैं I1 कंडीशन पे हूँ, A इनपुट दिया, यहाँ पे देखो A इनपुट दिया I1 कंडीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं, S2 स्टेज पे जा रहे हैं, इसलिए दैट्स व्हाई ये मेंशन द S2 हमने लिख दिया। ठीक, और कोई इनपुट जा रहा है क्या, नहीं B जा रहा है, नहीं डॉलर जा रहा है। ओके, बट हम क्या देख रहे हैं कि इस स्टेज पे जाने के बाद जब दोबारा उसको फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये तो लास्ट पे पहुंच गया, तो रिड्यूस होने के बाद क्या करता है, सब में R2 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 लिख देता है, सब में R2 R2 लिख दिया। तो इन दोनों पे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि सिंगल एंट्री है, पर यहाँ पे मल्टीपल एंट्री है कि I1 स्टेज पे जब मैं A पे गया तो ये फाइंड द S2, मतलब शिफ्ट भी हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द शिफ्ट रिड्यूस। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस द प्रॉब्लम। सर S2 कैसे आया, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, एवरीबॉडी कैन, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ, मैं S2 फिर से बताता हूँ। देखो ये I1 स्टेज है, ठीक है, जब मैं इस स्टेज आया तो इस स्टेज का नाम क्या रखा है इन्होंने, I2, ये मेंशन है, ये I2 स्टेज है। अब हमें ये पता करना है कि S2 कैसे इसके पहले S2 कैसे लिखते थे। हमने यहाँ पे क्या इनपुट लिया, A इनपुट लिया, अभी डॉट की पोजीशन क्या थी, A से पहले थी। ओके, A मिलने के बाद डॉट की पोजीशन क्या होगी, एक शिफ्ट हो जाता है, ये पोजीशन हमारी क्या है, I1 की पोजीशन है। ये जो I1 पोजीशन है, एक इनपुट देने के बाद क्या पोजीशन शिफ्ट होगी कि नहीं, पहले ये बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। A इनपुट देने के बाद पोजीशन शिफ्ट होगी कि नहीं। यस सर। सर ये C वाले में ना, C जिसमें C ये अच्छा, वो आपको I1 दिख रहा है क्या। ओके, पीडीएफ में यू हैव मेंशन दिस द I0 स्टेज हियर, दिस द I0 स्टेज हियर, वो कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज है ना, दिस द I1 you have mentioned here, this the I0 and this the I1. Okay, that's why you have clear your I1, this is the stage is the I1. Okay, otherwise आपको confusion होगा। I think कुछ लिखा नहीं है पेपर, ठीक है, हाँ कुछ लिखा नहीं है, पेपर फोल्ड है इसलिए आपको I1 की तरह दिस द I1 स्टेज, I लिखा हुआ है वो only for the stage. Okay, this is the I1 स्टेज। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग भी हो रही है और रिड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर, एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि वाई द SLR सबको ये समझ में आया कि व्हाट इज द नीड ऑफ ए SLR1 पार्सल। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन। ड्यू टू द रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, क्योंकि जब मैं LR0 पार्सल यूज करता हूँ तो क्या करता है, जहां पे भी रिड्यूस हो रहा है, व्हेनेवर वी रिड्यूस द एलिमेंट इट इज अ मेंशन द ब्रांडली, सब में R1 R1 R2 R1 R2, मतलब व्हाटएवर प्रोजेक्शन इट रिड्यूसेस मेंशन द एवरीवेयर। ठीक है, तो सिंगल एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज्यादा एंट्री हो जाती है तो दैट क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो SLR1 में क्या करते हैं, उसका फॉलो निकालते हैं और फॉलो की जो वैल्यू आती है, रिड्यूस वाला स्टेटमेंट सिर्फ वही लिखता है। तो पार्सर, ये पार्सर क्या करता है, SLR1 पार्सर रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट कंपेयर टू द, इट इज नॉट अ टोटली रिड्यूस्ड, मतलब देखो ऐसा नहीं कि अब कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, बट इट इज अ रिड्यूस्ड, खत्म नहीं कर पा रहे, इट इज नॉट अ कैंसिल द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, देयर इज अ लिटिल बिट टेक्निकल टर्म्स, रिड्यूस कर रहा है, उसको कम कर रहा है। वहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वहां पे क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर बाय एवरीवन। चलो, इज इट क्लियर, वी मूव फर्दर, प्लीज रिस्पॉन्ड। So now we have moved the next topic. Yes, are you able to understand or have you any doubt, any questions? Now move further, please respond. चलो अब इसको समझते हैं, CLR1 and LALR1. This the CLR1 and LALR1 solve with the help of a LR0 item. Okay, ये किसकी हेल्प से सॉल्व करता है, LR0 के आइटम से सॉल्व करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए LR0 आइटम। इसके पहले हमने क्या मतलब समझा था, LR0 आइटम समझा था, बट वी हैव डजंट नो व्हाट इज ए LR1 आइटम। LR1 आइटम इक्वल टू होता है किसके, LR0 आइटम। LR0 आइटम का क्या मतलब है, वही मैं क्लोजर निकालूंगा और गो टू निकालूंगा। ओके,
प्लस एसोसिएटेड विद द लुक अहेड। एक बफर होता है जिसमें क्या होता है, लुक अहेड। हम एक टाइम में एक सिंबल को देखते हैं। तो LR1 item equal to the LR0 item plus look ahead, and this is the fundamental difference of these two. In a LR1 parser, put the reduce the full of a row. जब भी कोई रिडक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, फुल ऑफ ए रो लिखते हैं, ठीक है। इन SLR1 क्या करते हैं, रिड्यूस इन द फॉलो। पहले मैं उसका फॉलो निकालता हूँ जो भी प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, और वो प्रोडक्शन उसी फॉलो की जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। इन CLR1 एंड LLR1 पुट रिड्यूस ओनली ऑन द लुक अहेड। यहाँ पे हम किसके हिसाब से लिखते हैं, बेस्ड ऑन ए लुक अहेड। समझते हैं क्या है लुक अहेड। लुक अहेड ऐसा समझो, अभी जब भी मैं कोई प्रोडक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल डिराइव टू जॉर्ज स्मॉल ई कैपिटल बी, कॉमा करके हम यहाँ पे इसको बोलते हैं लुक अहेड। इनिशियल में ये गिवन होगा, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर लुक अहेड। क्योंकि हमें क्या करना होगा इसमें, CLR1 and LLR1 में वी हैव सॉल्व our parsing table with the help of a LR1, but ये LR1 it is a LR0 plus look ahead, okay। तो कॉमा करके ये जो ग्रामर जो प्रोडक्शन है दैट इज ए गिवन, और कॉमा करके लुक अहेड भी गिवन होगा, ठीक है। कैसे ये काम करता है, ट्राई टू व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस है। दिस इज द स्टेक, दिस इज इनपुट, इज द LR पार्सर, this is the LR parsing table. It is a similar in the LR1 item used for the solving this parsing table, okay। So stacks input लेगा, input buffer से input लेगा, LR parsing table take the decision on the, this is the parser, the main objective of a parser produce the parser, ठीक है। That is a fundamental difference, that is a block diagram of this one। So one of a major important rule is how to find the look ahead in a, everybody please focus here। हमने दो चीज पढ़ा था, LR0 आइटम में क्या क्या होना चाहिए, LR1 आइटम में क्या होना चाहिए, LR0 आइटम एंड प्लस लुक अहेड। LR0 आइटम कैसे कैलकुलेट करें, वी हैव ऑलरेडी स्टडी, ओके, बट हाउ वी कैन कैलकुलेट द लुक अहेड, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनेगा, LR1 आइटम। तो सीखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द लुक अहेड, ठीक है। व्हाटएवर ग्रामर इज गिवन उसको ऑगमेंटेड ग्रामर में तो बनाएंगे ही, ओके। ऑगमेंटेड ग्रामर में बनाने के बाद ठीक है, ऑगमेंटेड ग्रामर में यहाँ पे हमने क्या किया, जॉर्ज सॉल्व करके दिखाएं क्या, ई डैश ये इसका है, ई डैश ई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रामर गिवन है, ओके। कैसे गिवन है, व्हाटएवर ग्रामर इज गिवन हमने उसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया। ऑगमेंटेड ग्रामर को कैसे करते हैं, जो स्टार्टिंग सिंबल है ई है तो ई डैश से दिखा देंगे, ई डैश डायरेक्ट टू ई, स्टार्टिंग में डॉट लगा दिए, क्योंकि हम ये सर या सर अजीम बहुत देर से बाहर वेट कर रहा है लॉबी में, उसका एंटर नहीं हो पा रहा है, मतलब उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है समवन विल लेट यू इन। व्हिच वन, हाँ नाम क्या उनका, एक बार नाम बोलिएगा। सर शेख अजीमुद्दीन, शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन। शेख SHE के ना, यस सर, यस वन सेकंड। तो ये जो नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, कहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे? नो सर, आपने वो टाइप किया था ना, तो जो नीचे आ रहा था सजेशन में वो मैं कह रहा था कि यही है, सर यही है। नहीं वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इसीलिए तो टाइप कर रहा हूँ। उनको परमिशन क्यों नहीं है, वो तो क्लास में होंगे सर। पता नहीं उसमें मैसेज आ रहा है समवन इन द मीटिंग विल लेट यू इन। आप ही लोग को बदमाशी, ये शेख मोहम्मद है तो ऑलरेडी परमिट है। हाँ सर अभी आए, अभी आ गया, चलो ठीक। परमिट तो मैंने सबको किया था, आप ही लोग बदमाशी करते रहते हो ना उसमें, कोई कहता है सर रिमूव करते हैं वो करते हैं, तो इसलिए मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों, मस्ती क्यों करते हो, एक दूसरे को रिमूव करते रहते हो, कुछ बदमाशी करते रहते हो, तो मुझे भी कुछ के कांस्टेंट देखने पड़ता है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो तो इस पे ध्यान ना देना पड़े। चलो, और कोई डाउट किसी को, अभी एनी डाउट? हाँ, अब देखो इसको लुक अहेड कैसे कैलकुलेट करते हैं,
दिस ग्रामर इज गिवन, तो ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया। तो आवर फर्स्ट ग्रामर क्या है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। फर्स्ट ग्रामर क्या है हमारे पास, जो अगर मैं इसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करता हूँ, ई डैश डिराइव टू ई। ओके, तो पहले मैं सिर्फ इसको लूंगा किसको, ई डैश डिराइव टू ई। ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है। तो कॉमा करके लुक अहेड क्या होगा, लुक अहेड क्या होगा, ये डॉलर होगा। कैसे डॉलर होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है। अब ध्यान से समझते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द लुक अहेड। देखो डॉट के बाद अगर क्या होता है, कोई वेरिएबल आता है, तो वो सिर्फ क्या होता है, दैट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, डॉट के बाद अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो वो ओपन होगा, ठीक है, खुलेगा। वो कैसे खुलेगा, बेस्ड ऑन दिस ग्रामर। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ई डिराइव टू बीबी। हमने क्या किया, ई डिराइव टू डॉट बीबी, ठीक है, कॉमा कर दिया। अब बात ये होती है सर ये तो मुझे मिल गया, ये तो पिछला है, बट यहाँ पे लुक अहेड क्या आएगा। ओके, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, जिस प्रोडक्शन को मैंने ओपन किया है, किसको ओपन किया है, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, किस प्रोडक्शन को ऊपर किया है, ऊपर ई को किया है, ई को ऊपर किया ना। ई के आगे का जितना भी एलिमेंट है एसोसिएटेड विद दिस वन, एसोसिएट विद द लुक अहेड। देखो कैसे लुक अहेड कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, ये चीज ध्यान से समझो। डॉट पहले क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, डॉट के बाद कैपिटल ई था, और मैंने क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हुआ, डॉट के बाद अगर कोई वेरिएबल होता है तो उसका प्रोडक्शन नीचे लिखता है। कहाँ से मिला मुझे, ई डिराइव टू बीबी, तो डॉट के बाद बीबी मिल गया। अब ये होता है कि सर ये लुक अहेड कैसे लिखेंगे, ओके, क्योंकि आप देखेंगे ये चेंज होता रहता है, तो ध्यान से समझो कैसे चेंज होगा। तो जिस प्रोडक्शन को मैंने ओपन किया है उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका मैं फर्स्ट निकालूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नोट में इसीलिए मैंने लिख दिया आप ही के लिए। नोट व्हाट इज द लुक अहेड नेक्स्ट, व्हाट एवर यू हैव ओपन उसके राइट साइड में, ठीक है, ओपन करेंगे। इफ देयर इज नो राइट साइड एलिमेंट देन कॉपी द प्रीवियस लुक अहेड, ठीक है, वी हैव मेंशन हियर। देखो ई को मैंने ओपन किया था, ई के राइट साइड में कुछ अवेलेबल है क्या, जितने भी एलिमेंट है उसका क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट निकाल लेंगे। ओके, ई को मैंने ई को छोड़ के, ई को ओपन कर दिया था, इसको छोड़ के राइट साइड में जितने भी है, तो राइट साइड में क्या अवेलेबल, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं है। हियर कॉमा इज नॉट ऑपरेटर। ओके, देखो कॉमा को ऑपरेटर की तरीके से भी ट्रीट करता है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ ए सेपरेशन आल्सो, बहुत ध्यान देने की बात है। तो जो पार्सिंग में यूज कर रहे हैं वो कॉमा को नॉट यूजिंग एज ए ऑपरेटर, हो सकता है कहीं पे भी ऑपरेटर भी काम करते हैं, बट जनरली we have used as the for the purpose of a separation। ओके, तो कॉमा ऑपरेटर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लुक अहेड क्या है, डॉलर, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या मिल गया मुझे, डॉलर। नीचे वाला भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके डॉट के बाद क्या है, कैपिटल बी, बी का जो प्रोडक्शन है वो मैंने लिख दिया, सबके स्टार्टिंग में डॉट लगा दिया। ओके, अब बात होती है कि सर यहाँ पे लुक अहेड क्या लिखेंगे, तो लुक अहेड मैंने अभी आपको क्या बोला, जो प्रोडक्शन मैंने ओपन किया, डॉट के बाद क्या था, बी, ठीक है, बी को ओपन किया था, इसको छोड़ के रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट निकाल लूंगा। तो बी का फर्स्ट क्या होगा, सी एंड डी, दैट्स वाई कॉमा करके हमने क्या लिखा, सी एंड डी। ठीक, अगर मान लें यहाँ पे कोई लुक अहेड कुछ मिले ही नहीं तो ऊपर वाले का जस्ट कॉपी कर देंगे। ये चीज यहाँ, ये स्टेप जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, डॉट के बाद बी किया, डॉट के बाद वेरिएबल था वो लिखा, फिर उसके राइट साइड में वट एवर एलिमेंट वी हैव फाइंड आउट, कैलकुलेट द फर्स्ट। बी का फर्स्ट क्या है, सी एंड डी, दैट्स व्हाई हियर मेंशन द सी एंड डी। इज इट क्लियर बाय एवरीवन या हैव यू एनी डाउट? सर डॉलर कैसे आया था? ये डॉलर कैसे आया था, एक बार फिर से समझो। डॉट के बाद क्या मिल गया मुझे, ई मिला था। ये ग्रामर, इस ग्रामर को फिर से पूरा एकदम स्टार्टिंग से सुनो ध्यान से। दिस इज अ ग्रामर, प्लीज यस नो बोलते रहो। दिस इज ग्रामर इज गिवन, ओके, वी हैव कन्वर्टेड इन द आर्गुमेंटेड ग्रामर। आर्गुमेंटेड ग्रामर में कैसे करते हैं, जो स्टार्टिंग सिंबल है, तो यहाँ पे ई है तो ई डैश डिराइव टू ई, ये मिल गया, ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। तो स्टार्टिंग में जो भी सिंबल का प्रोडक्शन में डिराइव करता हूँ, फर्स्ट वाले के साथ मैं कॉमा करके लुक अहेड में क्या लिख दूंगा, डॉलर। ओके, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डॉट। अब मैं डॉट के बाद क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे ये बताती है कि डॉट के बाद अगर कोई वेरिएबल है तो इसको ओपन कर दो। मैं देखूंगा ई कोई प्रोडक्शन दे रहा है क्या, हाँ सर दे रहा है, दिस प्रोडक्शन गिव द बीबी, तो डॉट के बाद बीबी लगा दिया, कॉमा। अब देखो हमने ओपन क्या किया था, ई, ई के राइट साइड में क्या एलिमेंट है, प्लीज बताइए क्या एलिमेंट है ई के राइट साइड में, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है।
जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हम जब फर्स्ट निकालते हैं, ध्यान से समझो, जब फर्स्ट निकालते हैं तो एलिमेंट के साथ में प्रीवियस वाले का लुक अहेड भी देखते हैं। आई हैव रिपीट माई सेंटेंस, वेन एवर वी हैव ए कैलकुलेट द लुक अहेड, तो जिसका मैं प्रोडक्शन को लाऊं उसके राइट साइड में क्या एलिमेंट है एसोसिएटेड विद द लुक अहेड। तो यहाँ पे एलिमेंट तो कुछ नहीं है, बट लुक अहेड क्या है बताओ, व्हाट इज अ लुक अहेड? डॉलर। डॉलर। और इसका फर्स्ट निकालोगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि टर्मिनल है ना, डॉलर इज अ टर्मिनल, तो इसीलिए यहाँ पे डॉलर हो गया। अब नीचे देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट के बाद क्या किया, बी को ओपन कर दिया। क्यों बी को ओपन किया तो समझ में आ रहा होगा ना, बी वेरिएबल है, हमने ये लिख दिया। अब डॉट के ये फर्स्ट वाले बी को हमने क्या किया था, ओपन किया था। इसको छोड़ के राइट साइड में जितने भी है, अब मैं इसका फर्स्ट निकालूंगा। किसका फर्स्ट निकालूंगा? फर्स्ट ऑफ ए बी कॉमा डॉलर, फर्स्ट ऑफ ए बी कॉमा डॉलर लिखना चाहो लिख लो, फर्स्ट ऑफ ए बी कॉमा डॉलर। तो वी हैव सेलेक्ट द फर्स्ट ऑफ ए बी। फर्स्ट ऑफ ए बी क्या है, सी एंड डी, दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन द सी एंड डी ऑब्लिक में। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? डिड यू रिसीव योर आंसर और नॉट? तो सर प्रीवियस वाले का फर्स्ट देखते हैं, अगर जैसे इसमें बी का है तो हमने ऊपर वाले में देखा बी कॉमा जो डॉलर। नहीं ऐसे प्रीवियस वर्ड मत यूज करो, आप समझ रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। प्रीवियस जिस प्रोडक्शन को मैंने ओपन किया था, ध्यान से समझो, डॉट की पोजीशन जहां लगी थी, जिस प्रोडक्शन को मैंने ऊपर किया था, जस्ट उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है एसोसिएटेड विद द लुक अहेड, लुक अहेड को भी साथ में लेते हुए उसका फर्स्ट निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो मैं एक छोटा सा स्टेप करके दिखा रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हियर वी हैव कैलकुलेट द, लिख लो LALR1 पार्सल। टुडे वी हैव लर्न हाउ वी कैन डिफाइन द LALR1। LALR1 कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द सॉल्व विद द हेल्प ऑफ LR1 आइटम्स। पिछला जो दो था कौन कौन सा, LR0 and SLR1 solve with the LR0, but LALR1 and CLR1 solve with the LR1. What is the LR1? LR1 is the LR0 plus look ahead. तो इसमें जब भी हम लिखेंगे तो look ahead को भी मेंशन करेंगे। ओके, दिस ग्रामर इज गिवन, और हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द LALR1 पार्सिंग टेबल। ओके, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? दिस ग्रामर गिवन है, इसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया, E dash derived to E, V, V सबकी नंबरिंग कर लिया। ओके, नाउ वी हैव हियर प्रिपेयर द LR1 आइटम। इसके पहले हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे, LR0 आइटम। LR1 और उसमें डिफरेंस क्या है, मैं साथ में लुक अहेड भी लिखूंगा कॉमा करके। ठीक, तो मैं हमने यहाँ पे कैसे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन, वी हैव चूज दिस फर्स्ट वन, E dash derived to E। इस सिर्फ एक सिंगल वाले को लिया, स्टार्टिंग में डॉलर लगाया, और ये स्टार्टिंग सिंबल है, इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, डॉलर। ओके, बाकी सबको भूल जाओ। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। डॉट के बाद क्या लगा है हमारे पास, ई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगा, डॉट के बाद अगर कोई वेरिएबल है, व्हाट एवर प्रोडक्शन इट इज ए डिराइव, सबके आगे सबको लिख दो। तो ई क्या डिराइव कर रहा है, बीबी, तो हमने लिख दिया क्या, डॉट बीबी। ओके, फिर मैंने कॉमा लगाया, अब मुझे लिखना लुक अहेड। अब पहले ये तो पूछेंगे सर लुक अहेड कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रोडक्शन को मैंने ओपन किया है, ध्यान से समझो, किसको ओपन किया है, डॉट ई वाले को ओपन किया है। इसके आगे राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं, इसके आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर होता तो मैं उसका क्या निकालता, फर्स्ट ना, लेकिन इसके आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो बट इसके आगे और क्या है, इसके आगे मिला मुझे डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ ए डॉलर, फर्स्ट ऑफ ए डॉलर क्या होगा, डॉलर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब फिर मैं देख रहा हूँ डॉट के बाद क्या है, बी। बी क्या है, कैपिटल बी है, वेरिएबल है। ग्रामर में फिर से देखता हूँ, कैपिटल बी ओपन कर रहा है स्मॉल सी बी को एंड डी को, तो सबको मैंने लिख दिया डॉट स्मॉल सी डॉट बी। अब ये होता है कि जिस प्रोडक्शन को मैंने ओपन किया है, किसको मैंने ओपन किया, फर्स्ट बी को मैंने ओपन किया। इज इट क्लियर? फर्स्ट बी को ओपन किया है, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा हुआ है राइट साइड में, बी, कैपिटल बी कॉमा डॉलर। तो इन सब का मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट निकालूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ए कैपिटल बी कॉमा डॉलर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ए कैपिटल बी कॉमा डॉलर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए बी। ओके, पहला वाला ही तो सिलेक्ट करते हैं ना फर्स्ट में, फर्स्ट ऑफ ए बी, फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए बी, दैट इज ए स्मॉल सी एंड डी, दैट्स व्हाई हियर वी हैव मेंशन द स्मॉल सी एंड डी। इज इट क्लियर? स्टेज नंबर I1 इज क्लियर बाय ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया ये? यस,
या हैव यू एनी डाउट? एक चीज और ध्यान से समझो, आई एम ऑडिबल? ये जो लुक अहेड है, ध्यान से समझिए एक बार, जो लुक अहेड चेंज होगा वो विधि ने क्लोजर होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे मान लिया मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो हम इसको एक I0 स्टेज से I1 स्टेज पे जा रहा है तो उसका लुक अहेड बदल दें, नहीं, एज इट इज कॉपी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कैपिटल ई लिया, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो अब ये तो हमने चेंज कर लिया क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ई डैश की पोजीशन चेंज हो गई। अब ये सोचोगे कि सर यहाँ पे तो डॉलर है, यहाँ पे क्या लिखूं? तो जब भी मैं गो टू फॉलो करता हूँ, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेट चेंज करता हूँ, तो लुक अहेड चेंज नहीं होता। ध्यान से समझिए, लुक अहेड चेंज होता है विदिन ए क्लोजर, क्योंकि जो ओपन करते हैं ना, नीचे जो ओपन करते हैं उसी के राइट साइड में चेक करते हैं। ये काम कब करते हैं, क्लोजर के टाइम में, मतलब विदिन ए बॉक्स चेंज होगा, एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने पे सिर्फ कॉपी होगा। आर यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? यस, हैव यू एनी डाउट? प्लीज रिपीट इट। Anybody have any questions, any doubts? Is it okay? Please respond. अब देखो सेम है, सारा कैनोनिकल सेम है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है, सब में लुक अहेड भी आएगा। अब देखो फिर से क्या हुआ, हमने फिर से बी ले लिया, बी के बाद क्या किया, डॉट बी। अब देखो इसका जो प्रोडक्शन है, जब मैंने इस प्रोडक्शन को ओपन किया तो जो डॉलर है पहले वाला वो तो डॉलर ही आ जाएगा। ओके, अब डॉलर यहाँ पे पहले डॉलर आ गया। अब इस डॉट के बाद क्या क्या, बी को ओपन किया, अब इसके आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं है और डॉलर है, तो फर्स्ट ऑफ है डॉलर, फर्स्ट ऑफ है डॉलर, क्या हुआ, डॉलर। देखो यहाँ पे ये इसकी वजह से नहीं चेंज हुआ, ये चेंज हुआ क्या, विदिन ए क्लोजर। आर यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएंगे तो सिर्फ लुक अहेड कॉपी होता है, और जब विदिन ए लूप या विदिन ए सर्किल में उसको ओपन करता हूँ, जिसको टेक्निकल टर्म्स में क्लोजर बोलता है, तभी वो चेंज होगा। आर यू गेट दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कई बार क्या होगा कि स्टेज में सब कुछ सेम होगा बट उनका लुक अहेड डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, नंबर ऑफ जो स्टेट है, अगर किसी भी पार्सिंग में आपसे ये पूछा जाए कि विच पार्सर प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज, तो कौन सा पार्सर होगा, LA/LR1। व्हाई? बिकॉज हो सकता है कि स्टेज के सारे एलिमेंट सेम हो बट उनका लुक अहेड डिफरेंट हो, तो लुक अहेड डिफरेंट होगा तो उसको कंबाइन नहीं कर सकते, सेपरेट ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको समझते हैं, ये स्टेज मैंने लिख दिया, फिर हमने बी ले लिया तो बी होगा, और ये डॉलर यहाँ से कॉपी हो गया। यहाँ पे क्या मैंने लिखा, स्मॉल सी से क्या हुआ, डॉट बी आ गया, डॉट बी से ओपन किया, इसके आगे क्या था, डॉलर, तो इसका फर्स्ट एरिया डॉलर हो गया। ठीक, फिर सी से यहाँ पे आया, डी से यहाँ पे आ गया, फिर कैपिटल बी से यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं, हाँ, सेम ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द आवर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एंड आफ्टर द व्हेनेवर वी ड्रॉ दिस वन, we calculate the number of steps, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 and I9। ओके, देख रहे हैं, देयर इज I9 स्टेज, इसके पहले कितना था, I6 था। ओके, I0 से I9 कितने स्टेज हो गए, 10। इज इट क्लियर? तो जो LA/LR पार्सर है, इट्स गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज, इसमें स्टेज बढ़ जाते हैं। देखो इसके पहले कितना था, I0 से I6, देयर इज 7 नंबर ऑफ स्टेज, बट वहां पे कितना हो गया है, 10। तो LA/LR क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेज सबसे ज्यादा होता है कंपेरिजन टू एनी पार्सर। पहले ये बताओ, इज इट क्लियर बाय एवरीवन, या हैव यू एनी डाउट? प्लीज रिस्पॉन्ड। We move further, or you have required some hold and yes, Sivendra, are you here? Satyam? Yes sir, yes sir। हाँ शिवेंद्र, आ रहा समझ में? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है। बाकी लोगों को, वंशिका, साक्षी, हाँ, आ रहा समझ में? देखो ऑनलाइन से थोड़े चैलेंजेस तो बढ़ जाते हैं ना। यस, किसी को वॉइस में दिक्कत हो तो चैटिंग बॉक्स में लिख दो प्लीज प्लीज,
इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव यूज योर चैट बॉक्स अगर कोई नॉइस आ रही तो। और राहुल चौधरी, यस, इज इट क्लियर? यस सर। आ रहा है, चलो वेरी गुड। राघव, व्हाट अबाउट योर स्टेटस? एंड आ रहा है। रिया आपको? चलो ठीक है, फिर आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं, इसको फिनिश करते हैं, फिर प्रिपरेशन करो अपना आप लोग बैठ के, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेज सबसे ज्यादा किस में होंगे? वी हैव स्टडी हियर द LALR1। क्यों सबसे ज्यादा स्टेज बढ़ जाते हैं? क्योंकि अब एक चीज मैं आपको दिखा दूं इसमें क्यों ये होता है। स्टेज नंबर 3 देखो एंड 6, ध्यान से देखो। स्टेज नंबर I3 एंड I6, ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। सारे एलिमेंट सेम है, सिर्फ लुक अहेड डिफरेंट है। देख रहे हो कि नहीं आप? एवरीबडी, दिस स्क्रीन इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू ना। देखो B डिराइव टू C डॉट B, यहाँ पे देखो B डिराइव टू C डॉट B। यहाँ का जो लुक अहेड वो क्या है? C/D है। यहाँ पे क्या है? डॉलर है। तो सेम स्टेज होने के बाद भी सिर्फ इनका क्या है? लुक अहेड क्या है? डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम अलग स्टेज काउंट किए हैं। इसीलिए वहाँ पे स्टेज इस LALR पार्शन में सबसे ज्यादा होता है। और देखो आप, और देखो किसका किसका सिमिलर है, देख के बताओ मुझे। आई थिंक 3 and 6 हो गया। सर 8 and 9। यस, 8 and 9, वेरी गुड। 8 and 9 में भी देखो क्या है? लुक अहेड डिफरेंट है। व्हाट्स अ गुड नेम? सर रश्मि। हाँ, रश्मि भी सही बता रही है। 8 and 9 में भी क्या है? सिर्फ लुक है। देखो यहाँ पे सिर्फ ये लुक अहेड है, लास्ट वाला कॉमा के बाद जो है, यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है। एंड 4 and 8 में देखो, ये 4 है, 7 और 8 नहीं 4 8 लोग नहीं कर सकते। सर 4 और 7 सेम है। 4 and 7 सेम है, यस। हाँ, 4 and 7, यस, 4 and 7 देखो सेम है, लुक अहेड डिफरेंस है। अब देखो ये पोर्शन यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व होता है। अब सबसे इनमें सारी चीजें, जैसा मैं टेबल बना रहा हूँ ना, देखो सब कुछ सेम है। डिफरेंस सिर्फ क्या है? ये देखो पूरा टेबल सेम है, बस क्या हुआ इसमें? नंबर ऑफ स्टेज चेंज हो गए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ? अभी जब मैं LR0 पार्सल करता था तो मैं जो भी प्रोडक्शन रिड्यूस होता था सबको क्या करता था? ब्लाइंडली लिखता था, ओके। जब मैं SLR1 कैलकुलेट करता था तो क्या निकालता था? उसका फॉलो निकलता था। एंड LALR1 में हम क्या देखते हैं? लुक अहेड। अब देखो I4 स्टेज पे देखो लुक अहेड क्या होगा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज नंबर I4, स्टेज नंबर, यस, ये देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। स्टेज नंबर I4 में लुक अहेड क्या है? C/D, ओके। तो ये जो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है ये सिर्फ कहाँ लिखा जाएगा? C और D लोकेशन पे, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C and D, देखो दैट्स व्हाई द R3 रिटन हियर। डॉलर नहीं पता तो डॉलर नहीं लिखा। अब मैं देखूंगा I5 स्टेज देखो, हाँ I5, यस दिस द, और I5 के आगे क्या लिखा हुआ है? डॉलर। कौन सा प्रोडक्शन है ये? दिस R1, ओके। सो दैट्स व्हाई हियर मेंशन द, सिर्फ डॉलर वाली लोकेशन पे क्या लिखेंगे? R1 लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? वाई मैंने C और D पे क्यों नहीं लिखा? ठीक है, बाकी चीजें तो सेम है, वो मैंने बताया हुआ आपको। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर से मैं देखता हूँ I7 पे भी मैं देखता हूँ कि जो रिड्यूस वाला है वो कहाँ है। बाकी सब तो सेम है। I7 पे भी देखोगे डॉलर लिखा होगा, I7। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो, हाँ I7 में देख रहा है, देखो I7 में भी क्या लिखा है? लुक है डॉलर। दैट्स व्हाई हियर मेंशन ओनली द डॉलर। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? या हैव यू एनी डाउट? प्लीज आस्क। उसके बाद जो है वो भी सिमिलर है, CLR1। इसमें क्या होता है? सबसे पावरफुल की अगर मैं बात करता हूँ तो मोस्ट पावरफुल पार्सल इज द
CLR1, ये मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। विच वन इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर इन ए बॉटम अप, ओके, ठीक है, तो CLR1 मोस्ट पावरफुल, व्हाई इट इज अ मोस्ट पावरफुल वो समझते हैं। अब देखो हमने क्या किया, सेम ग्रामर के लिए क्या अप्लाई किया, CLR1 में मैंने सेम इसलिए लिया कि एक बार से सब समझ में आ जाए क्या डिफरेंस है। अब जैसे अभी रश्मि बता रही थी कि सर I3 I6 सेम है, ठीक है, I4 I7 सेम है, I8 एंड I9 सेम है, तो जो CLR1 पार्सर है वो क्या करता है, सारे स्टेज को कंबाइन कर देता है। इन्होंने क्या किया, I3 और 6 को कंबाइन करके एक नया स्टेज बनाया जिसका नाम लिखा 3-6, 4 एंड 7 को कंबाइन किया, क्या लिखा 4-7, ठीक है, I8 एंड 9 को कंबाइन करके लिखा क्या 8-9, क्या लिखा प्रोडक्शन सेम बट लुक अहेड डिफरेंट। इन सबका क्या था, प्रोडक्शन सेम था बट लुक अहेड डिफरेंट था, तो हमने क्या किया, सबको कॉमन कर दिया, ठीक है। जैसे वहां पे भी जो लुक अहेड है, दोनों का जो लुक अहेड है सबका क्या ले लिया, यूनियन, ओके, और एक नया स्टेज बनाया जिसका नाम रखा 3-6, कैसे, ये 3 और 6 स्टेज है इसलिए नाम रखा 3-6, 4 एंड 7 से है तो इसका नाम रखा 4-7, 8 एंड 9 से रखा तो इसलिए यहाँ पे रखा 8-9। समझते हैं यहाँ पे। अब बाकी चीजें तो सेम है, अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अब जहां जहां पे 3 था हमने वहां पे क्या लिख दिया 3-6, जहां जहां पे 3 था हमने वहां पे क्या लिख दिया 3-6, जहां पे 3 था ध्यान से समझो, क्योंकि जो I3 स्टेज और I6 दोनों जगह मैं क्या लिखूंगा 3-6 मेंशन कर दूंगा जितने भी स्टेज है। तो टेबल में मैं देखूंगा अगर कहीं पे I3 लिखा है या I6 लिखा है या गो टू स्टेटमेंट में भी कहीं लिखा है 3 या कहीं लिखा है 6, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 3-6, ओके। तो ये चीजें चेंजेस करेंगे, ये सेम चीजें मैं इसके साथ भी चेंज करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा, स्टेज को कंबाइन कर रहा है क्योंकि सारी चीजें सेम है, लुक अहेड डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे आप पहले देखोगे तो यहाँ पे I6 लिखा होगा, ओके, बट हमने इस स्टेज का नाम क्या रखा I36। यहाँ पे क्या था, प्रीवियस टेबल देखो ना, इसको भी मैंने 3-6 कर दिया, यहाँ पे या तो S4 होगा या S7 होगा, इसको भी मैंने 4-7 कर दिया। यार स्टेज नंबर 8 लिखा था हमने क्या लिख दिया 8-9 से कर दिया, यहाँ पे 9 लिखा था तो 8-9 कर दिया क्योंकि स्टेज को कंबाइन करना है, ओके। अब फिर आप देखोगे कि मैंने इन सबको काटा भी है, क्यों काटा है, क्योंकि ये देखो I36 एक स्टेज यहाँ मिल रहा है और एक स्टेज यहाँ मिल रही है सेम, देखो I36 सेम मिल रही है यहाँ पे, सेम यहाँ पे मिल रहा है, तो हम दोनों एक को काट देंगे एक को रहने देंगे, चाहे मैं ऊपर वाले को कट सकता हूँ या नीचे वाले को कट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लिया कोई रिमेनिंग एलिमेंट बच रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे मिल जाता R1, ओके, और यहाँ पे R1 नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, इस R1 वाले को यहाँ लिख देते और फिर से इस स्टेज को काट देते हैं, ठीक। तो जितने भी कॉमन थे वो मैंने कट कर दिया। देखो I47 में क्या था, देखो ये दोनों ब्लैंक थे, ऊपर मुझे क्या मिल गया R3, बट यहाँ पे क्या था R3 मिला है, तो इस R3 को मैंने यहाँ से काट के यहाँ पे लिख दिया R3 और इस पूरे स्टेज को कैंसिल कर दिया, ओके। फिर I86 में हमने क्या किया, I86 को कोई कॉमन नहीं मिला, हाँ ये इसके नीचे मिला हुआ है, यस, तो यहाँ पे ये दोनों ब्लैंक था, यहाँ पे R2 लिखा था तो R2 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और इस स्टेज को हटा दिया। अब मैं फाइनली क्या मिलेगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फाइनली जब मैं मेंशन करूंगा तो ये स्टेज मुझे लुक एट टेबल के मिल जाएंगे। जहाँ पे 3 था, देखो I3 था, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 3-6, जहाँ पे I4 था वहाँ पे क्या लिख दिया 4-7, ये 5 था, ये 8 था, 9 स्टेज को भी हमने कंबाइन किया, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। दैट इज अ मोस्ट पावरफुल पार्सर, ओके। तो कंबाइन करने से क्या है, ये लुक अहेड की तरीके से जो मैं रिड्यूसिंग एलिमेंट लिखता था उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल गई, और जो LALR पार्सर के साथ एक प्रॉब्लम होती थी हमारे साथ कि नंबर ऑफ स्टेज बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो हमने क्या किया इसमें CLR1 में जितने भी सेम प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे और जिनका लुक अहेड डिफरेंट था उनको मैंने कंबाइन कर लिया, ओके। अब यहाँ पे मैंने उसका क्या कर लिया, LR1 आइटम भी बना दिया। इसमें आप देखेंगे सारी चीजें सेम होंगी। अब मैंने I3 एंड I6 को कंबाइन कर दिया, वहाँ पे एक में क्या था CD था और एक में डॉलर था, तो हमने क्या देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, पिछले वाले से कंपेरिजन करो, CD/$, मैं दिखाता हूँ CD/$, देखो यहाँ पे I3 वाले स्टेज को देखना, ये देखो I1 I3, यहाँ पे सिर्फ CD था, हमने 3 को कंबाइन किया था और 6 को किया था, आई थिंक, यस 3 एंड 6, देखो 3 एंड 6 सेम है, 3 एंड 6 सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे CD है यहाँ पे डॉलर है, मैंने दोनों का यूनियन ले लिया, सिर्फ लुक अहेड चेंज हुआ, तो हमारा लुक अहेड क्या हो गया, पहले वाले का C/D/$,
और इस स्टेज का क्या नाम लिख दिया, I36। देखो वही चीजें लिखी गई है यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ, एक बार रिवीजन कर लेना इसको, ठीक है। तो ये रहा I36, ये मेंशन द C/D, $। देखो सबका यूनियन करके जो भी कॉमन था लिखते चले गए, तो ये हमारा LLR भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी 3 मिनट है, अभी अच्छे से रिवीजन कर लो। आई हैव रिकॉर्ड, स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग हियर, ठीक है।